Good morning, all of you. Good morning, sir. So in last class, we were discussing about this rolling numerical. So we have two more numericals related to the rolling. Then after we will start the sheet metal forming. So have you solved this numerical? A strip with cross section 150 mm cross 4.5 mm is being rolled with 20% reduction of area using 450 mm diameter. So how we can solve this numerical? We can utilize the percentage reduction of the area, and you know very well the in the case of rolling the width remain constant. So here this is the thickness of the object and 150 mm is the width. So this width will remain constant and this is the roller diameter. And what we need to calculate the angle subtended by the deformation zone at the roll center. So how we can solve? We can calculate the percentage. Just wait. We can calculate the percentage. Uh, so the percentage from area we can calculate the delta H by 2. Yeah, M is not working. Yes, so percentage reduction in area can be calculated. Hello. सर गए क्या?
Hello. Am I audible? Please reply. Yes, sir. Yes, sir. Okay. I don't know. Just wait. So yes, my pen is not working just. So percentage reduction in area can be calculated based on the formula that initial area, that is 150 mm cross 4.5 mm. Simply you can say the percentage reduction can be calculated a1 either you can write b1 t1 minus b2 t2 divided by b1 t1, but here the b1 is constant, and based on that you can calculate the reduction in the thickness. So you can see here this can be easily calculated. Just wait. Here you can see the area, initial area minus final area divided by initial area multiplied by 100 is equals to 20. Okay, so the initial area can be written as B1 T1 minus B2 T2 divided by B1 T1. But B is uniform. Why it is uniform? Because in rolling, we always assume that the width of the slab remain uniform throughout the rolling process. So the BB will be cancelled out from numerator and denominator, and then what we can have the remaining 1 minus, here you can see the 1 minus T1 1 minus T2 by T1 is equals to 0.2, and we know very well the thickness T1 initial thickness is 4.5. ओके ये आपको दे रखा है क्रॉस सेक्शन, तो अगर इनिशियल T1 है तो T2 आप निकाल लेंगे। अगर T1 T2 निकल आया, जिसको हम लोग H1 H2 बोलते हैं, है ना, नाम अलग अलग है, कोई H1 H2 बोल सकते हैं या T1 T2 बोल सकते हैं। नाउ यू कैन कैलकुलेट द ड्राफ्ट। ड्राफ्ट कैसे कैलकुलेट होता है? H2 minus H1. हाँ, नहीं इनिशियल थिकनेस ज्यादा होती है ना इसमें, तो हाँ, H1 minus H2. तो 4.5 minus 3.6 get 0.9 mm. Now you can use the formula of the tan theta या tan alpha, that is draft divided by capital R, that is a roller radius. ये हम लोगों ने फॉर्मूला अभी देखा था, अगर आपको ध्यान हो, tan theta is equals to अंडर रूट में ड्राफ्ट डेल्टा एच, या आप अगर cos थीटा वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हैं उससे भी निकल जाएगा। 1 minus cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस delta H by 2R. 2R, ठीक है, वहां से आप निकाल लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। So you will get the alpha is equals to 0.063, but he's asking the value in radian, so you can multiply by the pi upon 180. Okay, is it clear? ये सभी को समझ में आया how we have calculated this? सर Now you, Yes, sir. yes, गौरव। सर यस सर सर जो मैंने सॉल्यूशन दिया था वो सर गलत था, मैंने केवल थिकनेस के बेस पर सर उसको रिडक्शन किया था। नहीं, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा था, मैंने देखा था। यस सर, फिर सर उसमें मतलब क्या गलत था सर? नहीं, आपने कैसे किया, मैंने उसको ज्यादा देखा नहीं, आपका आंसर मैंने देखा था तो आपका आंसर सही था। यस सर, मैंने सर विड्थ को सेम टू सेम एज इट इज रहने दिया, केवल जो 20% जो सर रिडक्शन हो रहा था ना वो केवल हाँ। मैंने थिकनेस में ले लिया, ठीक है, एंड फिर सेम तो देखो यहाँ पर भी आप अगर देखें ये बी कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो परसेंटेज रिडक्शन किस में हो रहा है? T1 माइनस T2 अपॉन T1 ही तो आ रहा है। बिल्कुल आपने सही किया है। मैंने उसको और
कंजर्वेटिव वे में किया है, क्योंकि आपको तो ये पता था कि भाई विड्थ तो कांस्टेंट रहेगी, तो आपने बी, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उसको लिख के पूरा आपको, लेकिन आपको ये दिखाना पड़ेगा। गौरव, आपका आंसर सही है और आपने किया भी बिल्कुल एग्जैक्ट है। गेट पॉइंट ऑफ व्यू तो आप वो उसी से तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में आपको लिखना है, कॉपी में लिखवाने के लिए आता है, तो आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से। आपका बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट है। जी सर, जी सर। Now there is another numerical which is very important and asked in ES, and which gives you the complete concept of this rolling. Okay, please read this numerical. I know many of the students will not be interested in this IES numerical kind of work, but this is a very important. और अगर अनफॉर्चुनेटली हम लोग ऑनलाइन एग्जाम वगैरह हो रहे हैं, ऑफलाइन अगर होते तो इस तरह के न्यूमेरिकल मैं जरूर रखता, लेकिन इस तरह के न्यूमेरिकल अगर मैं इसमें रखूंगा तो आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसको सॉल्यूशन निकालने में, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं है, इस बार पेपर कोई और इसको ड्राफ्ट कर रहा है, आप लोगों का जो ऑनलाइन पेपर है, ठीक है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन कोल्ड रोलिंग इज 0, आप लोग नोट करते जाइएगा क्या क्या डेटा गिवन है, और अगर आपको डेटा पता है आप इजीली निकाल सकते हैं आंसर, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप डेटा को, इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करें उसका जो गिवन डेटा होता है यू कैन नोट डाउन इट। वेट, ठीक है। तो गिवन डेटा आप यहां लिख सकते हैं क्या क्या गिवन डेटा है। तो सबसे पहले क्या है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, किसका वैल्यू दे रखा है, ये म्यू का। तो म्यू डाउन। डिटरमाइन, क्या क्या चीजें पूछ रहा है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, एल पूछ रहा है। द वेलोसिटी ऑफ द स्लैब एट द एग्जिट, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी होगी v2 उसकी वैल्यू पूछ रहा है। स्पेसिफिक रोल प्रेशर, देखो ये एक नया टर्म आया है, स्पेसिफिक रोल प्रेशर। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्पेसिफिक रोल प्रेशर। स्पेसिफिक रोल हाउ वी कैन कैलकुलेट, देखिए क्या क्या डेटा और गिवन है। नेग्लेक्ट द लेटरल स्प्रेड, यूज द फॉलोइंग डेटा। width of the slab is 80 mm, roll radius 800 mm, thickness of the slab is 400 mm, velocity of the slab at the entry, initial velocity दे रखी है उसकी v1 200 mm per second, rolling load 14 मेगा न्यूटन दे रखा है। तो आप मुझे कोई बता सकता है कि रोलिंग लोड दे रखा है और रोल प्रेशर पूछ रहा है, तो कैसे निकाला जाएगा सर? रोलिंग लोड डिवाइड बाय एरिया। वेरी गुड, क्योंकि रोलिंग जो प्रेशर होता है, हाउ वी कैन राइट द फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स तो आपको दे रखा है सर, फोर्स दे रखा है, ये देखो कन्वेंशनल में आया था न्यूमेरिकल, आपको पता है ना ईएस में दो तरह के पेपर होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक कन्वेंशनल होता है, तो ये कन्वेंशनल का न्यूमेरिकल है, तो F बाई ए। अब बात आती है कि सर ए में क्या लिया जाए, ए का जो डायमेंशंस हैं वो क्या लिया जाए। अगर ये तुम समझ में आ गया कि ए में क्या क्या डायमेंशंस ली जाती हैं तो हमारा टास्क कंप्लीट है। कौन बताएगा इसमें क्या क्या डायमेंशंस ली जाएंगी, बता सकता है कोई? कौन सा क्रॉस सेक्शन लिया जाएगा रोलिंग प्रेशर निकालने के लिए? सर कांटेक्ट एरिया जो रहता है वही रहेगा ना। मुझे आप देखिए, आपको ये स्लैब है, ये स्लैब है, सुनिएगा पहले, ये स्लैब है, ठीक है, और ये इसका जो लेंथ है वो L है, और इसको रिड्यूस किया गया, और जितना भी लेंथ रिड्यूस हुई वो कांटेक्ट लेंथ के बराबर होगी। हम लोग ये तो मान लीजिए इसकी टोटल लेंथ है स्मॉल l, और जो कांटेक्ट जितना रोलर कांटेक्ट में रहा आपको पता ही होगा कैसे हम लोग वो निकालते हैं, 100 ऑफ L डेल्टा H, और ये इसकी विड्थ है W, या B से आप इसको डिनोट कर सकते, या W से, ये थिकनेस है H से डिनोट करते हैं। तो अगर इसका वॉल्यूम पूछा जाए तो कैसे निकालोगे, HBL,
ठीक है। इस स्लैब का वॉल्यूम क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम HBl, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम जो फाइनल थिकनेस होगी उसके साथ में निकालेंगे तो वो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि भैया हमें रोलिंग प्रेशर निकालना है। ये रोलर है, ये रोलर अपना काम कर रहा है, तो आप मुझे बताइए कि कौन सा क्रॉस सेक्शन मैं लूं जिससे कि मुझे रोलिंग प्रेशर के लिए वैल्यू निकल के आ जाए। क्या मुझे ये वाला क्रॉस सेक्शन लेना है? कौन सा क्रॉस सेक्शन लेंगे? ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो बताइए कौन सा क्रॉस सेक्शन लिया जाएगा? 1 वाला लिया जाएगा, 2 वाला या 3 वाला? सर 3। सर 1 और 3 दोनों लिए जाएंगे। चलिए बट अपना सर जस्टिफिकेशन दीजिए जो लोग बोल सर रहे तो हैं। सर एक गुड और पॉइंट पर लग रहा है ना। सर 1 और नहीं, 3 एक मिनट सर, रुकिए, एक मिनट रुकिए। जो लोग 1 और 3 बोल रहे हैं वो अपना जस्टिफिकेशन दें। ये सर मैं दे रहा हूँ सर। हाँ, सर इसमें जो कांटेक्ट एरिया होगा जो वो, हाँ सर वो 2 लोड की वजह से लग रहा है सर। एक तो नॉर्मल वाला जो है, जो लोड है, और दूसरा सर जो है वो है शेयर लोड जो। हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं पहले तो ये समझो। हम रोलिंग प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो रोलर प्रेशर डाल रहा है वर्कपीस में, हमें वो कैलकुलेट करना है। ये सर तो सर हाँ, रोलर जो प्रेशर डाल रहा है सर, पहला तो सर उसकी वजह से होगा सर जो नॉर्मल लोड है उसका। और सर ठीक है, सेकंड सेकंड सर जो होगा वो शेयर लोड की वजह से होगा, तभी तो सर शियर फ्रिक्शन की लोड क्या वैल्यू इस पे लगेगा? सर तो एक ही क्रॉस वर्क सेक्शन पे पीस पे। लगता है हमेशा। होता है कि एक जगह लोड लगा हुआ है, वो दो क्रॉस सेक्शन पे काम कर रहा होगा। वो करेगा तो एक ही क्रॉस सेक्शन पे ना। उसका इंटेंसिटी अलग हो सकता है, वो F मतलब टेंजेंशियल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस ऐसे करके निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग देखिए, ये ध्यान रखिएगा, मैं अब फाइनल चीज बता रहा हूं आप लोगों को। ये बहुत सारे न्यूमेरिकल में ऐसा मतलब पूछा गया है। इवन आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, बहुत सारे छोटे छोटे PSUs के एग्जाम देंगे, तो रोलिंग प्रेशर पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। उसमें कंफ्यूजन होता है कि हम कौन सा क्रॉस सेक्शन लें। उसमें सारे क्रॉस सेक्शन आपको दे रखे होंगे, लेकिन हम लोग सब ये न्यूमेरिकल का जो मेरा रखने का पर्पस केवल यही है, you can understand how we can calculate the rolling pressure based on the rolling load. If the rolling load is given to you, which cross section we have to use? So you have to remember. So the cross section which is in the contact with the roller is always taken for the consideration to calculate the rolling pressure. So we always take the top surface. So how we can calculate top surface? That is a surface number 3. कैसे 3 ना निकालेंगे सर? उसका? B विड्थ है, और कितने कांटेक्ट में है आपका रोलर बताइए? कितने L, कांटेक्ट में? L, कैपिटल L, जिसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ कांटेक्ट। सो क्या Length of- एरिया होगा? L मल्टीप्लाइड बाई B, हाँ तो सर हम तो एरिया ऑफ कांटेक्ट ही तो ले रहे हैं ना इसमें। हाँ, एरिया ऑफ कांटेक्ट ही ले रहे हैं। अरे हाँ तो भैया सर, प्रेशर निकालते हैं या स्ट्रेस निकालते हैं तो क्या लेते हैं आप बताइए? हाँ वो एरिया ऑफ कांटेक्ट ही लेते हैं। तो सर इसमें बिल्कुल। एरिया ऑफ कांटेक्ट हम जो ले रहे हैं, अब जब हाँ, डिफॉर्मेशन होगा तो सर जो मतलब वो पूरा आर्क लेंथ जो होगी थ्री की सरफेस पे जो बन रही है, तो वो सर प्लेन अगर हम देखेंगे उसका, तो वो सिर्फ 3 प्लेन पे थोड़ी ना कैलकुलेट किया जाएगा सर। 3 प्लेन नंबर 3 पे ही तो कैलकुलेट होगा। देखो चलो मैं इसका पर आपको हम आर्क जो जनरेट प्रोजेक्ट, कर रहे हैं उसका प्लेन तो डिफरेंट होंगे, डिफरेंट, क्योंकि अब वो एक तरीके से नहीं प्लेन नहीं, एरिया जो आप तो बन रहा है वो समझ ही प्लेन नहीं तो रहे है हो नहीं। यार। एक बात बताइए, हम्म, आप कोई भी प्रेशर डाल रहे हैं, कहीं पर भी कोई भी बॉडी है प्रेशर डाल रहे हैं, तो आप उसका लोड आपको दे रखा है, कितने लोड से आप प्रेशर डाल रहे हैं। तो अगर आपको वो प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप वो कितने कांटेक्ट पे मतलब कितना आपका सरफेस है जिस पर आप प्रेशर डाल रहे हैं, कितना एरिया है, वही एरिया तो लेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूं इसको, ये इसका सर अगर प्रोजेक्टेड सर एरिया। लाइन कांटेक्ट होता है इसमें, तो मैं कह सकता था सर कि थ्री सरफेस अगर लाइन कांटेक्ट हो रहा है स्टार्टिंग में जब रोलिंग स्टार्ट हुई है तो। नहीं, लाइन कांटेक्ट नहीं होता है। पर हाँ नहीं, स्टार्टिंग में तो थर्ड सरफेस हम बोलते हैं, पर लेकिन जब हाँ रोलिंग स्टार्ट हो गई, जब हाँ रोलर घूमना चालू हो गया, तब तो सर हाँ एरिया कांटेक्ट आ गया है। और जो एरिया कांटेक्ट आया है वो ना हाँ वो ना प्लेन नंबर 3 का है और ना प्लेन नंबर हाँ। 1 का है। वो तो सर नहीं, पूरा वो एक 3 का ही तो है सरफेस, वो। 3D अच्छा ये सरफेस बना रहा बताइए, है। रोलर चल कौन से प्लेन पे रहा है? चल थर्ड सरफेस पे रहा है। हाँ, तो थर्ड सरफेस का ही एरिया लेंगे ना। पर एरिया हम थर्ड सरफेस का नहीं ले प्रोजेक्टेड रहे हैं ना, एरिया हम तो लेंगे, एरिया सुनो। कांटेक्ट एरिया ले रहे हैं ना।
हाँ कॉन्टेक्ट एरिया ले रहे हैं ना, तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा उसका लेंथ उसका हाँ, आप तो प्रोजेक्टेड एरिया देख रहे हो ना, मैं यहाँ पे अच्छा सर, जो कॉन्टेक्ट एरिया होता है उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें H1 की भी जरूरत पड़ती है कैसे पड़ेगी यार? सर? जो डेल्टा H होता है निकालते हैं क्रॉस हम। सेक्शनल एरिया जानते हो? क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? हमेशा हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं। हाउ टू हाँ सर, वो तो pressure, the force अब divided by the cross sectional area at which the load is working. So how you can take the h is in the not in the role of this top cross section. टॉप क्रॉस सेक्शन पे तो रोलर काम कर रहा है, तो आप एच कहां से बार बार बोल रहे हैं? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ सर, जो हमारा आर्क जो है लेंथ, उसके बिल्कुल लिए बिल्कुल हमें हाँ, तो हमें सर उसके लिए जो कॉन्टेक्ट आर है, एक तो रोलर का रेडियस आर, और हम जो माइनस नहीं, करते हैं रोलर ना उसमें। रेडियस मत समझिए आप। रोलर अपना प्रेशर लगा रहा है भाई। रोलर क्या है? एक रोलर ऐसे सिलेंडर देखा है, सिलेंडर को रख दो, वो रोलर है। यस सर। वो सिलेंडर कितने कांटेक्ट पे, अब उसका प्रोजेक्टेड एरिया देखेंगे ना कि भाई ये रोलर कितना प्रोजेक्टेड एरिया पे काम कर रहा है। अगर उस प्रोजेक्टेड एरिया को आप जब निकालोगे तो उसकी लेंथ निकल के आएगी लेंथ ऑफ कांटेक्ट के बराबर। यस सर। ये एक बार, और मैं इसका भी आगे डायग्राम भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है? और ओके सर। विड्थ, जो उसकी रोलर की विड्थ कितनी होगी, रोलर की विड्थ कितनी होगी जो स्लैब की विड्थ है, ओके सर, तो तो सर मैं लेंथ सर मल्टीप्लाइड समझ बाय गया। विड्थ ही तो करोगे क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना, जितने पे वो रोलर काम कर रहा है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। ओके सर। ओके सर। तो ओके। हाइट नहीं आएगी नंदी साहब, हाँ हाइट सर, तो समझ गया सर। तो एरिया जो प्रोजेक्शन हमारा थर्ड सरफेस पे होगा, एरिया ऑफ ऑब्वियस कॉन्टेक्ट है, का ऑब्वियस है। प्रोजेक्शन जो देखिए थर्ड मैं दिखा सरफेस पे देता होगा। हूं, ये देखिए, ये देखिए, ये आपको इससे क्लियर होगा। यही तो, इतना ही तो पर आपका पार्ट वो रिड्यूस हो रहा है। यस सर। पर रोलिंग कांटेक्ट स्टार्ट आया और ऐसे करके रिड्यूस कर दिया। तो अगर आप इसका प्रोजेक्शन निकालेंगे, प्रोजेक्टेड एरिया वो निकालेंगे, लेंथ कितना होगा यहां से यहां तक। मैं पेन यूज कर लेता हूं अपना। एक्चुअली आज मेरे जो टैब का वो चल नहीं रहा है ये, तो इसलिए ये ग्लस इधर उधर बनेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये लेंथ कितना होता है ये बताइए? ये एल है और ये विड्थ बी है, यही तो होता है, ये स्लैब की विड्थ है। तो क्या एरिया हो गया? एल इंटू बी, नंदी सर। यस सर। तो ये ओके बोल रहा हूँ कि रोलिंग प्रेशर निकालने के लिए आपको कांटेक्ट एरिया लेना होता है जो कांटेक्ट रोलर के साथ में है। तो ये आपका प्रोजेक्टेड लेंथ हो जाएगी इसकी, तो जिसको हम बोलते हैं एल। भाई यहाँ पर डिटैचमेंट होता है, इसीलिए तो इसकी लेंथ को निकालने के लिए हम बार बार इतना सारा डेरिवेशन कर रहे हैं। तो ये आपका लेंथ ऑफ कांटेक्ट होता है। हम लोग आर्क नहीं ले रहे हैं, आर्क नहीं ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द लेंथ। ओके, projected length. Now you can see how we can calculate this is the given data. 0.08 length of contact is to be calculated, V2 is to be calculated, pressure is to be calculated. These three data we have to find out. Okay, now B is 80 mm, R is 800 mm, T1 the initial thickness of the slab is 400 mm. Okay, initial velocity is 200 mm per second, and F is also given 14 mega Newton. So 14 multiplied by 10 to the power 6 Newton. So what we can calculate, the draft, based on this draft we can calculate mu square r। आप, मैंने अभी आपको इक्वेशन ड्राइव कराई थी, करा चुका हूं मैं, नहीं कराया हूं अभी ये? यस सर। यस सर। हाँ, तो देखिए जहां पर म्यू की वैल्यू दे रखी है, तो वहां तो इमीडिएटली आपको समझ लेना है कि भाई इसमें कहीं ना कहीं म्यू स्क्वायर आर यूज होगा, जिससे कि हम ड्राफ्ट कैलकुलेट कर सकें। तो ड्राफ्ट हमने कैलकुलेट कर लिया 5.12, और इनिशियल थिकनेस आपकी दे रखी है। इनिशियल थिकनेस कितनी है? 400 mm। बात समझ में आ रही है आपको? यस आ रही है सर। हाँ, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, फाइनल थिकनेस आप बता सकते हो कि कितनी फाइनल थिकनेस होगी। यस। ठीक है, अगर हमें फाइनल थिकनेस पता चल गया, आपको मैंने वॉल्यूम कॉन्स्टेंसी का फॉर्मूला बताया था, अगर ध्यान हो। वॉल्यूम कॉन्स्टेंसी, वॉल्यूम कॉन्स्टेंसी क्या होती है? देखिए, L1 B1 H1 is equals to the L2 V2H2 V2 multiplied by H2। और हमें पता है रोलिंग में
बी जो विड्थ होती है वो यूनिफॉर्म होती है। अब हम L1 को रिप्लेस कर सकते हैं वेलोसिटी से। क्यों रिप्लेस कर सकते हैं वेलोसिटी से? क्योंकि आपका जो रोलर है वो ट्रेवल किसके अलोंग कर रहा है? लेंथ के अलोंग कर रहा है। लेंथ के अलोंग से। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि v1 इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकलेगी कि इतनी लेंथ इतने सेकंड में ट्रेवल की, तो मैं पर यूनिट लेंथ ले रहा हूं इसको, तो v1 मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय h1 is equals to the final velocity of the slab multiplied by h2। ये फॉर्मूला आप और नोट करके लिख लीजिएगा कि ये भी फॉर्मूला होता है अगर हमें लेंथ के टर्म्स में न निकाल के, अगर हमें वेलोसिटी के टर्म्स में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ वी वांट टू कैलकुलेट, इफ वी वांट टू राइट द वॉल्यूम कांस्टेंसी, अगर मान लीजिए वॉल्यूम कांस्टेंसी, इसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज या मटेरियल फ्लो रेट। मटेरियल फ्लो रेट कैसे निकाला जाता है कि भाई जो इनिशियल मटेरियल था रेट तो वही रहेगा। कैसे? v1 multiplied by b1 multiplied by h1 is equals to v2 multiplied by v2 multiplied by h2। अब अगर आप इनके यूनिट देखें, इसका यूनिट क्या होगा, मुझे कोई बता सकता है? इसका यूनिट क्या होगा? जो ये वाली वैल्यू है इसका यूनिट होगा mm मीटर क्यूब पर सेकंड। वेरी गुड, mm क्यूब पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ? मटेरियल फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट, कि कितना मटेरियल सेकंड में फ्लो हो रहा है, एक सेकंड में कितना मटेरियल फ्लो हो रहा है। ठीक है, मैंने लेंथ को रिप्लेस कर दिया केवल वेलोसिटी से। ठीक है, और अगर आपको वॉल्यूम लगाना है डायरेक्टली तो वॉल्यूम ये है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया। अब यहां पर वही सेम चीज मैंने की है, b1 को मैंने कैंसिल्ड आउट कर दिया है, तो v1 h1 और v2 h2 के टर्म्स में आपको इक्वेशन मिल जाएगी, और वही इक्वेशन को हमने यहां यूज किया है। तो यहां से हमें क्या निकल के आ जाएगा? फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, t1 t2 आपको पता चल गए, तो आप निकाल सकते हैं नहीं? अरे इनिशियल वेलोसिटी यस सर। v0 बोल रहे हैं, वो आपको गिवन है। देखिए कितना गिवन है, 200 mm पर सेकेंड। सो इसमें पूछ रहा है कि फाइनल वेलोसिटी बताइए रोलर की, तो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। और F जो है प्रेशर, हम यहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 14, आप मुझे आंसर बताइए सभी लोग इसको करके, 14 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई कॉन्टेक्ट एरिया में क्या आएगा? B विड्थ मल्टीप्लाइड बाई L। लेकिन L अभी आप लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया है, तो L कैसे कैलकुलेट करेंगे? अंडर रूट ऑफ R डेल्टा H। ये ध्यान है आपको लेंथ ऑफ कॉन्टेक्ट का फॉर्मूला? यस सर। ठीक है, तो आप आंसर बताइए कितना प्रेशर आ रहा है, रोलिंग प्रेशर कितना निकल के आ रहा है? नमन जोशी जी आप नहीं बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या ये न्यूमेरिकल? सर कंफ्यूजन है मेरे को एक्चुअली थोड़ी बहुत। बताइए बताइए। सर वो एक तो वहां पे जो सरफेस आपने लिया था कांटेक्ट 3, वो तो समझ में आएगा कि प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया है, तो जो एरिया कांटेक्ट में हम उसको लेंगे। पर जो बिल्कुल। हमारा नेट चेंज आ रहा है वो तो सर थिकनेस में चेंज आ रहा है ना, तो सर सरफेस वन क्यों नहीं लिया हमने? नहीं, हमें चेंज तो देखना ही नहीं है ना। अरे चेंज तो, एक बात बताइए, आप लोग तो यार ऐसी बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये तो बड़ा सिंपल सी चीज है। आपको एक्चुअली कंफ्यूजन क्या हो रहा है, आप लोग मैकेनिक्स और सोम में ये अज्यूम करते थे कि बॉडी मस्ट बी रिजिड, सो देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन। बट व्हाट इज हैपनिंग इन द मेटल फॉर्मिंग? टू थिंग्स आर हैपनिंग simultaneously. One is application of load and second is deformation, because body is not the rigid. So you are a little bit confused, but the principles are same. Consider the body is rigid, then what will happen? How you will calculate the rolling pressure? Simple, force divided by the cross sectional area at which the load is working. The principles are same, so there is no confusion. डिफॉर्मेशन क्या भाई? ऑब्वियस, इट इज ऑब्वियस। और वहां पर भी जो मैकेनिक्स में आप पढ़ के आए हैं, फोर्स, स्ट्रेस, या आपने सोम में पढ़ रहे होंगे साथ के साथ,
स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा। स्ट्रेस के लिए हमेशा हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं जहां पर लोड लग रहा है। स्ट्रेस इज व्हाट? फोर्स डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया। And if we talking about the pressure is also same. The force, अगर आपसे कोई रोलिंग स्ट्रेस पूछता है, मान लीजिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मैं 100% श्योर हूं कि इस तरह के न्यूमेरिकल भी आए हैं कि कैलकुलेट द रोलिंग स्ट्रेस। सो हाउ यू कैन कैलकुलेट? सिंपल, द रोलिंग प्रेशर इज rolling stress, in which you have to put the rolling load divided by the cross sectional area at which the load is working. You have not to consider the any kind of deformation. consider करने के लिए अलग चीजें हैं। आपको तो केवल ये देखना है कि किस क्रॉस सेक्शन पे काम कर रहा है जोशी सर। हाँ सर। और क्या कंफ्यूजन है ये? सर एक ये सर वॉल्यूम कौन इसमें सर कांस्टेंट वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। बोलिए क्या है? हम लोग सर हमने जैसे वॉल्यूम फिक्स लिया किसी भी स्लैब का, आफ्टर डिफॉर्मेशन द रोलिंग के बाद प्रोसेस में सर थिकनेस कम हो जाएगा उसका। हाँ, तो सर इंक्रीज क्या होगा फिर? लेंथ इंक्रीज होता है। एल, तभी तो एल को कांस्टेंट नहीं रखा है भाई। आप बोल रहे हो ना कि V वो L1 B1 H1 is equals to L2 B2 H2, then what will happen? आप ये करके देखिएगा, रोलिंग में यही तो होता है, लेंथ इंक्रीज हो जाती है। स्लैब अगर आपका विड्थ रिमेन कांस्टेंट, थिकनेस इज बीइंग रिड्यूस्ड, देन व्हाट विल हैपन? द लेंथ विल इंक्रीज, इट विल कंपनसेट। कोई इसमें सर कोई रिलेशन की हम किसी भी स्लैब की थिकनेस हाफ कर दे तो लेंथ कितना % इंक्रीज होगा या कितना होगा, डबल या हाफ? अरे वाह, ये तो तुम इसी से निकालोगे। तुम्हें जो फॉर्मूला मैंने बताया L1 B1 H1 इज इक्वल्स टू L2 B2 H2, बताइए मेरे को, अगर किसी स्लैब का थिकनेस हाफ करनी है तो उसके लेंथ कितनी बढ़ जाएगी? ये अभी तुम्हारे लिए टास्क है। तभी तो हम लोग बोल रहे हैं वॉल्यूम कॉन्स्टेंसी। बी कांस्टेंट है। आप कह रहे हो कि इनिशियल थिकनेस मान लीजिए h है और फाइनल थिकनेस h/2 है, ठीक है? तो क्या रिलेशनशिप आएगा L1 और L2 में, वो मेरे को बताइए। जो फाइनल लेंथ होगी ना वो इनिशियल की डबल हो जाएगी। आप कैलकुलेट करने वाले हैं, मैंने बता दिया आपको। ऐसा है? अरे बोलिए, और भी बोल सकता है। अभिषेक बोलिए आप। फोटोग्राफ इतने स्मार्ट लगा के रखते हैं, बोलते नहीं है बस, पता नहीं क्यों नहीं बोलते हैं। अभिषेक बोलो बेटा। अरे जोशी निकल के आया, कितना लेंथ आया? सर ऐसे मैंने वो करा था V1 B1 और H1 मतलब फिक्स रख के, तो उसका हाफ पुट किया तो सर H इक्वल्स टू 2 ऑफ H1 इनिशियल का ट्वाइस आ रहा। अरे नहीं, आप कह रहे हो कि अगर हमने थिकनेस को हाफ करना है, किसी स्लैब की थिकनेस को हाफ करना है, तो लेंथ कितनी घटेगी बढ़ेगी? तो जो लेंथ फाइनल निकल के आएगी ना वो इनिशियल लेंथ का डबल हो जाएगा। यहीं से निकल के आया है। मान लीजिए ये न्यूमेरिकल समझ में आया सभी को? बोलिए, कितने लोगों को समझ में आया? प्लीज रेज योर हैंड्स प्लीज। Yes, sir. Okay, now I'm going to start sheet metal forming. Okay, हर्षिता आपको समझ में आया बेटा? Yes, sir. Okay, now move to the next sheet metal working. Just wait, I have to remove all these drawing. Yes. So in sheet metal working, you know very well, we have to understand different kind of operations like blanking and punching, and sometimes we utilize the forming as well. So first we have to understand how we can differentiate the plate, foil and sheet. So thickness less than 0.15 mm is called foil. Okay. The thickness greater than 0.15 mm and less than 5 mm is called sheet, and thickness greater than 5 mm is called a plate. Okay, clear? So this is a
we can say a boundary line for foil, sheet and plate. So in our study, or we can say in our chapter in sheet metal working, we have to deal with the sheet. Okay, so thickness may vary from 0.15 mm to 3 mm or 2 mm, 1 mm, depending upon the, we can say, the application. Now, in order to understand the sheet metal working, so what we do actually, we apply the press and dies in order to produce the various types of sheet metal products. Okay, so this is a very easy chapter. We have finished the rolling one. Now you can see the commonly used tools. A set of die and punch assembly is normally used in the case of sheet metal working. So here you can see a symbolic diagram of die and punch. I know we are having the time 11:45, but I'll take 5 minutes please, because after that I will finish this introduction part of this sheet metal, then I will close my lecture. Okay, so here you can see this pre-decided cavity is nothing but it is a die. Okay, die opening, इसको हम बोलते हैं, इस पूरे कंप्लीट कंपोनेंट को बोलते हैं डाई, और इनको बोलते हैं पंच. ओके, पंच. So what we do actually, we place our sheet here. हम लोग अपना शीट को यहां रखते हैं और ऊपर से जो ये पंच है उसको हम लोग हाई वेलोसिटी के साथ में इम्पैक्ट लोडिंग कराते हैं. एंड ड्यू टू दिस इम्पैक्ट लोडिंग व्हाट विल हैपन, वी विल अचीव the blanking or the cutting operation. Simply we can say cutting or forming operation depending upon the applications. Okay, so here you can see in sheet metal working mostly we do the cutting operation. Okay, and sometimes in combination die we combine both the operation. One is cutting, second is forming. Okay, so it depends upon the die utilized by you. अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप किस तरह की डाई यूज कर रहे हैं, ये सारा कुछ उस प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा कि किस तरह की उसकी शेप है. आप उसी हिसाब से उसके लिए आप वो डाई सेलेक्ट करेंगे. ओके, सो दिस वी कैन से दिस sheet metal working is very important. And here you can see the typical diagram of, we can say, the punch and die. So this is a punch. Simply you can see this is a die opening. अगर हम इसको इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये जो डायग्राम है आपने जो देखा, ये तो सिंपल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे हम लोग डाई एंड पंच को यूज करते हैं. अगर आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सो दिस इज ए, we can say, ram slide which is directly connected with the press. Okay, so this is a part of press. You can see ये क्या है, इसको हम बोलते हैं पूरा यहां से लेके यहां तक. मैं अपना पेन यूज कर सकता हूं आपको समझाने के लिए. ये जो पूरा अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं, इट इज a part of press. Okay, press. This part is connected with the press, and this is a die opening. You can see we will place our workpiece. This, the black color representing the initial or starting workpiece. Okay, जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है, कुछ पोर्शन कट के नीचे जा रहा है, ये आपको क्या है, ये वर्कपीस है. वी फिक्स द वर्कपीस एट द डाई ओपनिंग. ओके, वी फिक्स द वर्कपीस एट द डाई ओपनिंग with the help of some packaging arrangement. So it depends upon the type of machine. Lots of things are involved. How we are doing the packing of the workpiece. Okay, अभी मैंने आपको कंपाउंड डाई जब मैं लैब में कराया था तो वहां पर हम किसी भी तरह की पैकिंग नहीं कर रहे थे. सिंपल शीट को रखा और ऊपर से उसको प्रेस कर दिया. बट इन मेनी केसेस वेयर वी रिक्वायर्ड हाई प्रिसीजन, हाई एक्यूरेसी, then we use some special kind of packing arrangement. Okay, we pack the sheet from both the sides, then we press the workpiece so that there should not be any kind of movement in the workpiece. Okay, here these are the guideways.
ये क्या है, ये दोनों तरफ आपको जो ये कॉलम दिख रहे हैं ये क्या है, गाइडवेज हैं। यहाँ पर एक होलो पोर्शन है यहाँ पे, तो ये जो गाइडवेज हैं ये इसके अंदर मूव करते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी रैम इधर उधर मूव ना करे, वो प्रॉपरली एक गाइड वे, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं, एक तरह से गाइड की तरह काम करता है कि आपका पंच प्रॉपरली डिसेंड डाउन करे। ओके, so many things are involved. The guide post, this is a die holder, because this is a die, so in order to hold it we have a die holder. Okay, is it clear? So this is a punch holder, पंच को होल्ड करने के लिए यहाँ पर होल्डर लगा रखा है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। So lots of things are there. Now you can understand the very important process before going to start the types of dies, that is blanking and punching. Then we'll move to the different types of dies, then clearance, then their numericals. Okay, so in the next class we will discuss this punching and blanking process. So till then, thank you. Is there any query, Akash? So I'm going to end this class because now time is 11:50. You are all already giving me lots of abuse, like अरे यार छोड़ ही नहीं रहा है. Okay, so before listening these sounds, I should stop my lecture. So thank you. We'll see you in the next class. Thank you, sir. राधे राधे सर. Radhe Radhe.